तो ये जो कोर्स है फिजिक्स का, इसका पर्पज ये है, दिस प्रोवाइड बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ सेमीकंडक्टर फिजिक्स. So this is especially designed for computer science students because you are going to deal with a lot of devices, a lot of means like if you see computer science, so it will be related to computer, and in computer science and computer, the all technology depends highly on semiconductors. So semiconductor industry is the supporting industry which makes things possible. So it is why you need to know what is semiconductor physics and how it is important for computer science. तो जैसे कंप्यूटर साइंस के होने के लिए सेमीकंडक्टर फिजिक्स का होना जरूरी है, ऐसे ही जब कंप्यूटर साइंस में तुम बीटेक का डिग्री लेने जा रहे हो तो यू शुड बी अवेयर अबाउट सेमीकंडक्टर फिजिक्स. सो दैट इज व्हाई दिस कोर्स इज बीइंग ऑफर्ड टू यू. You may have some basic idea about semiconductor from your 10+2. सेमीकंडक्टर क्या होते हैं और उनके बारे में कुछ कुछ चीजें तुम लोगों को पहले पढ़ाया गया है. But here we will use some basic knowledge. जैसे अब जब हम लोग इस कोर्स की बात करेंगे तो जो पहले से पढ़ाया जा चुका है उसको हम लोग फिर से नहीं पढ़ा सकते. तुम लोग को भी काफी कुछ इसमें पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी. So this course is divided in 5 units. You see unit 1, electronic material, unit 2, semiconductors, unit 3, light semiconductor interaction, unit 4, measurements, and unit 5, engineered semiconductor material. हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे electronic material क्या होते हैं. It is all related to basics of computer science. तो इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी क्या है, ये सारा चीजें कुछ कुछ तुम लोगों को हो सकता है कि बहुत शुरू में कुछ थोड़ा बहुत पढ़ाया गया हो, बट देयर विल बी अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स इन दिस कोर्स. यू डोंट हैव मच कॉमन फॉर फ्रॉम प्रीवियस क्लासेस. ओके, so this is the syllabus. And you see there are some reference material. Reference material means there are few textbooks. One book is Semiconductor Devices, Physics and Technology. This is published by VD, 2008 edition. Simses, he is the author of this book. We will be using this book frequently for our discussion. One is JSING, this is Semiconductor Optoelectronics, Physics and Technology, and there are some reference books. In reference book, you will using this book, Optical Photonics, Optical Electronics in Modern Communication, this Oxford University Press publication, and this is P. Bhattacharya's book, Semiconductor Optoelectronic Devices. So these are some books which we will be using for this course, and there are some online resources available. MOOC courses, it's online course. There's one by M.R. Chenoy on NPTEL. This there are a lot of things are available on this NPTEL. NPTEL is an initiative to provide quality material for students online. So M.R. Chenoy, he taught this to probably master's students or not a first year students. So this course is a bit it is not very easy to understand for 10+2 student, but this is the reference material. I will try to put it simply so that you understand. This is another online course. This is Optoelectronic Material and Devices by Monica Katiyar and Deepak Gupta. I will teach everything properly and you will have an idea what it means. तो एग्जाम तक सब कुछ स्मूथ होगा, हम लोग सब सीखेंगे. बट जैसे मैं सिखाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, ऐसे तुमको सीखने के लिए कोशिश करना है. और कुछ समझ में नहीं आता है तो आई एम ऑलवेज देयर. आई एम थिंकिंग दैट यू ऑल हैव गुड एनर्जी. तुम लोगों ने अच्छे मन से अपना कोर्स ज्वाइन किया है, कोई तुमको जबरदस्ती बीटेक नहीं करा रहा है, और यू हैव इंटरेस्ट इन कंप्यूटर साइंस एंड आई एम विशिंग यू वेरी गुड फ्यूचर. और तुम लोग अच्छे से सीखो और बहुत
you get required skills, you do best in the industry. So my good wishes are with you, and we will have an frequent interaction for this semester. अभी अगर कुछ मेरे तरफ से मैंने बोल दिया, अगर तुम लोग को कुछ जेन्युइनली कुछ पूछना है तो कुछ लोग बात कर सकते, सब लोग बात करेंगे तो हम लोग नहीं सुन पाएंगे, बट वन बाय वन वी कैन टेक सम क्वेश्चंस इफ यू हैव समथिंग इन माइंड. अगर जो मैं तुमको बताया उसमें कुछ क्लियरिटी नहीं है, कुछ मेरे बारे में पूछना चाह रहे हो, तो यू कैन आस्क हियर, आई विल ट्राई टू आंसर. Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून हर्ष. Sir, I want to know about yourself, sir. ओके ओके, थैंक यू. तो अभी जैसे क्या हुआ, हम लोग जब ऑफलाइन क्लासेस करते हैं तो जनरली हम लोग पहला क्लास क्या करते हैं कि मैं सबसे पूछता हूँ कि तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ से आए हो, और तुमको तुम्हारा हॉबीज क्या है, और कंप्यूटर साइंस तुमने क्यों चुना. ये 4 क्वेश्चन आई वांट टू आंसर एवरीबॉडी. तो उसमें क्या होता है कि मुझे कुछ आइडिया होता है कि मेरे क्लास के बच्चे कैसे हैं. ऐसा तो नहीं है किसी को जबरदस्ती बीटेक कराया जा रहा है. तो अगर किसी को जबरदस्ती कराया जाए तो मैं उसको बोलता हूँ कि ट्राई टू फाइंड आउट योर इंटरेस्ट, ट्राई टू टॉक टू योर पेरेंट्स. इफ दे आर नॉट टॉकिंग, आई विल ट्राई टू कन्विंस देम कि जो हमको इंटरेस्ट होता है ना, हम वो अच्छा करते हैं. तो ये चीज होता है. इसलिए मुझे लगता है कि सबको इंटरेस्ट से करना चाहिए. जब हम कुछ मन से करते हैं तो हम अच्छा करते हैं. अगर हम मन से नहीं करते हैं तो हम अपना टाइम भी खराब करते हैं और चीज भी अच्छे से नहीं होती है. सो वी आर वेरी यंग, और पहला कोर्स कर रहे हैं, पहला डिग्री कर रहे हैं, तो हमको चॉइस तो हमारा पूछना चाहिए. तो तुम्हारा चॉइस से सबको हो रहा है, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ अभी. और फिर उसके बाद मैं अपने बारे में बताता हूँ कि मैंने क्या पढ़ाई किया, मैंने कैसे किया. तो इफ लाइक हर्ष इज आस्किंग टेल मी अबाउट योरसेल्फ, सो थोड़ा बहुत मैं अपने बारे में बताता हूँ कि मैं लखनऊ में अभी रह रहा हूँ, और पिछले 2 साल से. इसके पहले मैं अहमदाबाद में था, और मैंने बीएससी किया है लखनऊ यूनिवर्सिटी से, फिर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से एमएससी किया है फिजिक्स में, और उसके बाद मैं करीब 4 साल तक एक इसरो का इंस्टीट्यूट है, फिजिकल रिसर्च लैबोरेटरी अहमदाबाद में, मैं वहां पे रिसर्च कर रहा था. आफ्टर दैट आई डिसाइडेड, मुझे लगा कि मुझे टीचिंग अच्छा लगता है, तो आई ट्राई टू अप्लाई फॉर टीचिंग जॉब. और बेसिकली मुझे टीचिंग अच्छा लगता है, और इट्स लाइक कुकिंग इज माय हॉबी, एंड आई लाइक रीडिंग, आई लाइक ट्रेवलिंग. और हॉबी पे मैं इसलिए फोकस करता हूँ कि एवरीबॉडी शुड हैव सम हॉबी. क्या होता है, हम पढ़ते हैं, पढ़ने के साथ साथ कुछ ऐसी भी चीजें चाहिए, कुछ ऐसे चैनल हमको चाहिए जो हमारी क्रिएटिविटी को एक स्पेस देता रहे. अदरवाइज वी समटाइम वी व्हेन थिंग्स आर नॉट गोइंग वेल, द हॉबीज सपोर्ट यू. तो अगर किसी को कुछ बजाना अच्छा लगता है, कुछ इंस्ट्रूमेंट बजाना अच्छा लगता है, किसी को कुछ खेलना अच्छा लगता है, तो ये सब चीजें बहुत जरूरी है. दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग कि मेरा हॉबी क्या है. मैं कुछ खेल नहीं पाता जनरली, क्रिकेट वगैरह खेलने में मैं कभी अच्छा नहीं रहा. तो मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, खाना बनाना अच्छा लगता है, पढ़ाना अच्छा लगता है, घूमना अच्छा लगता है. तो दीज आर माय हॉबीज. अगर हम लोग ऑफलाइन मिलते तो शायद मैं तुम लोगों से भी पूछता, तुम लोगों से अलग अलग Sir, I also love cooking. दैट्स गुड. तो ये सब चीजें हैं, हम लोग को अपनी हॉबीज होनी चाहिए, कुछ ना कुछ हम लोग करते करते हैं, अच्छा लगता है. दिस इज व्हाट लाइफ इज. और टीचिंग इज माय पैशन. आई लाइक टू इंटरेक्ट विद यंग पीपल. वो लोग क्या सोचते हैं, तो मैं तुम लोगों को पढ़ाता हूँ, तुम लोगों से भी मैं बहुत कुछ सीखता हूँ. हम लोग एक लाइफ इज अ जर्नी where we meet different people and we learn from each other. So that is how I'm teaching you physics, but I'm also learning a lot of things from you. क्या तुम लोग सोचते हो, कैसे काम करते हो. तो that will be like good interaction. I'm very hopeful कि हम लोग एक दूसरे से सीखेंगे और आगे अच्छा करेंगे. So we will be starting from first unit. It is 10-hour stuff. We have to cover it in 10 hours, means 10 classes will be needed to cover this unit.
तो जैसे हम लोगों ने शुरू में बात किया कि एक सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए सेमीकंडक्टर फिजिक्स इंपॉर्टेंट है, और ये जो पेपर है ये भी सेमीकंडक्टर फिजिक्स को ही समझने का एक होलिस्टिक अटेम्प्ट है। 12th तक तुम लोगों ने फिजिक्स पढ़ा है, उसमें हो सकता है कुछ थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि सेमीकंडक्टर क्या होते हैं। और हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल से डिस्कशन शुरू करेंगे। अभी हम लोग ये बात करते हैं कि सेमीकंडक्टर फिजिक्स क्या है और सेमीकंडक्टर के बारे में हम लोग पहले से क्या क्या जानते हैं, और जो हम लोग जानते हैं उसी के बेसिस पे कुछ आगे का बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हम अपने आसपास चीजों को देखते हैं तो देयर आर फ्यू थिंग्स व्हिच आर कंडक्टिंग, देयर आर फ्यू थिंग्स व्हिच आर नॉन कंडक्टिंग। जैसे कि कोई आयरन का रॉड हो तो वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है, और अगर कोई लकड़ी हो तो वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं है। सो ब्रॉडली वी कैन से जो मटेरियल, जो सब चीजें हम अपने आसपास देखते हैं उनको दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया जा सकता है, कंडक्टर और नॉन कंडक्टर। कंडक्टर मतलब वो जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होता है, जिससे कुछ छुएंगे अगर हम, बिजली में टच करेंगे तो हमको करंट मारेगा, या हम लोग बहुत सारे इलेक्ट्रिक कनेक्शन के वायर की तरह यूज करते हैं कनेक्शन के लिए। और देर आर सम इंसुलेटर्स, सो देर इज कंडक्टर, देर इज इंसुलेटर। दो तरह से हम लोग जनरल ऑब्जर्वेशन में देखते हैं हमारे आसपास की जो चीजें हैं वो दो तरह की हो सकती हैं, या तो वो बिजली कंडक्ट करेंगी या तो नहीं करेंगी। तो अब सबसे पहला सवाल ये आता है, जब शुरू में लोगों ने सोचना शुरू किया होगा तो ये सवाल आया होगा कि कोई एक चीज है जिसमें बिजली या वो कंडक्टिंग है और एक चीज है जो नॉन कंडक्टिंग है। व्हाट इज द रीजन व्हाई iron is conducting and plastic or wood is not conducting? What is the reason behind it and why it is so? ऐसा क्यों हो रहा है? तो पहले तो हमको पता चलना चाहिए कि कंडक्टिंग इलेक्ट्रिक कंडक्टर की जब हम बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली होता क्या है और इसमें क्या कंडक्ट होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कह सकते हैं हम लोग, और उसी के थ्रू अब वो फ्लो किस मटेरियल में हो सकता है किस मटेरियल में नहीं हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन उसको हम लोग बोले कि इलेक्ट्रिसिटी का ये कंडक्टर है ये नॉन कंडक्टर। ये हम लोगों ने बहुत शुरू में पढ़ा है। लेटर ऑन यू कम टू ए सेमीकंडक्टर। तो बेसिकली सेमीकंडक्टर जो होते हैं वो कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे मटेरियल से मिलके बने हुए हैं जो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में कुछ है। So there are three type of material coming in the picture. There are conductors like iron, copper, and then there are insulators. जैसे हम लोग कुछ प्लास्टिक का देखते हैं या लकड़ी का कुछ देखते हैं तो वो नॉन कंडक्टिंग। फिर ये सेमी कंडक्टिंग मतलब कुछ बीच में। ओके, so now we are talking about there are three type of material coming in the picture. One is conductor, means जिनको हम लोग चालक, कुचालक हिंदी में कहते हैं। मुझे हिंदी में बहुत एग्जैक्टली टर्म्स नहीं पता है, बट आई विल ट्राई टू कीप थिंग्स बिकॉज बहुत सारे ऐसे भी साथ में बच्चे होंगे जो हिंदी मीडियम से पढ़े। मे बी इट इज गुड इफ यू गेट समथिंग कनेक्टिंग, अदरवाइज वी हैव टू लर्न अदर लैंग्वेजेस एज वेल। इंग्लिश तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो तीन तरह के मटेरियल की हम लोग बात कर रहे हैं। देयर आर कंडक्टर्स, नॉन कंडक्टर्स। नॉन कंडक्टर्स को हम लोग इंसुलेटर भी बोलते हैं, एंड समथिंग कमिंग इन पिक्चर, दिस इज सेमीकंडक्टर। अब सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर कैसे है, इनको हम लोग समझें। और दूसरा एक सवाल हमारे सामने ये है कि कुछ मटेरियल कंडक्टर है, कुछ मटेरियल इंसुलेटर है, ऐसा क्यों है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट?
why there are some material which are conducting, why there are some material which are not conducting. And when we are talking about conductivity, we are talking about electrical conductivity. There are different kind of conductivity also. जैसे कि हम जब कुछ, जैसे मान लो कुछ खाना बना रहे हैं तो उसमें जो चम्मच रहता है वो एक तरफ गर्म होता है, दूसरा सिरा भी कुछ टाइम के बाद गर्म हो जाता है. तो दिस इज नॉट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, दिस इज थर्मल कंडक्टिविटी. जो हीट है उससे, जैसे लोहे का एक सिरा गर्म करेंगे तो कुछ टाइम के बाद दूसरा सिरा भी गर्म हो जाएगा. तो ये होता है थर्मल कंडक्टिविटी. तो दो तरह का कंडक्टिविटी हो गया. एक तो थर्मल कंडक्टिविटी, मतलब हीट को कैसे कंडक्ट कर पा, मूव कर पा रहा है, and another is electrical conductivity. So as of now when we are talking about electrical conductivity, क्योंकि हम लोग अभी पहला यूनिट में इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल की बात करने वाले हैं. तो ये क्वेश्चन बहुत पहले से आया कि कौन सा मटेरियल कंडक्टर है, कौन सा मटेरियल नॉन कंडक्टर है और कौन सा सेमीकंडक्टर है, और ये ऐसा है तो ऐसा क्यों है. दिस इज अ क्वेश्चन जो हम लोग अभी ऐसे सोच रहे हैं. इसके पहले बहुत सारे लोग, जब बहुत कुछ खोजा नहीं गया था, स्टिल देयर वर पीपल हु आर थिंकिंग अबाउट इट एंड डेवलपिंग थ्योरीज फॉर दैट. एक चीज हमको समझ में आया कि जैसे हमने बोला कि इलेक्ट्रिसिटी इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, यही इलेक्ट्रिसिटी है. तो इलेक्ट्रॉन फ्लो, अब कोई मटेरियल ऐसा हो जिसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो पॉसिबल हो तो कंडक्टर हो जाएगा, और कोई ऐसा मटेरियल हो जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो ही ना कर पाए तो नॉन कंडक्टर हो जाएगा. सेमीकंडक्टर क्या होता है, हम लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा. सेमीकंडक्टर जैसे केमिस्ट्री भी पढ़ते हैं तो केमिस्ट्री के हिसाब से तुमको पीरियोडिक टेबल पता होता है, एंड देन यू सी ग्रुप 4 में जो एलिमेंट्स है उनको हम लोग बोलते हैं कि ये सेमीकंडक्टर्स होते हैं. और कौन मटेरियल होते हैं जिनको कंडक्टर बोलते हैं, कौन मटेरियल होते हैं जिनको इंसुलेटर बोलते हैं. ये भी अगर पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो काफी कुछ समझ में आएगा, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स है वो एक साइंटिफिक लॉजिक के साथ सेट किया गया है कि इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, इसका साइज क्या है. देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच हैज बीन केप्ट इन माइंड व्हाइल डिजाइनिंग दिस पीरियोडिक टेबल. तो पीरियोडिक टेबल में देख के काफी कुछ आइडिया होगा. ऐसे सेमीकंडक्टर अगर देखें तो ग्रुप 4 में जो एलिमेंट्स है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, लाइक दिस काइंड ऑफ एलिमेंट्स, इनको हम लोग बोलते हैं सेमीकंडक्टर. जैसे हम लोगों ने शुरू में बात किया कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो ही डिसाइड करता है कि कंडक्टिंग होगा कि नॉन कंडक्टिंग होगा. तो अगर जो कंडक्टिंग है उनका वो देखोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब इनके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है. तो जैसे किसी के आउटर सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो वो इजीली थोड़ा सा भी एनर्जी पाके फ्री हो जाते हैं और वो फ्रीली रोम कर सकते हैं. तो फ्रीली रोम करेंगे मतलब वो इलेक्ट्रिक कंडक्टर हो जाएगा, अच्छा कंडक्टिविटी देगा क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है. ऐसे ही जो इंसुलेटर है उसमें क्या होता है कि उनका जो आउटर सेल वगैरह है इतना टाइटली पैक्ड है, मतलब एकदम कंप्लीटली, जैसे इनर्ट गैसेस हम लोग पढ़ते हैं. सो इनर्ट गैसेस, they are self-sufficient, they don't need anything, they are not reacting even, so they don't have free electrons. So if there is an inert gas, so through that you will not be able to flow electricity, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टिंग वो नहीं होगा. ऐसे ही जैसे प्लास्टिक है, तो प्लास्टिक कोई एक एलिमेंट नहीं है, इट इज कुछ मॉलिक्यूलर फॉर्म में बनाया गया है. तो अब वो क्या है, वो केमिस्ट्री तो हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, तो आई एम नॉट गोइंग टू दैट डिटेल. But somehow you can say that material don't have free electron. Free electron वहां पे अवेलेबल नहीं है. एंड फिर ऐसे देखो, जैसे हम लोग नमक देखते हैं, नमक मतलब NaCl. NaCl को अगर हम लोग वाटर में घोले तो क्या बन जाएगा, Na+Cl- ऐसे करके बनते हैं. तो जो Na+Ca- है, इट इज लाइक चार्ज टाइप का हो गया. तो इलेक्ट्रिसिटी उसके थ्रू भी कंडक्ट करते हैं. तो NaCl नमक का घोल अगर है तो वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर बन जाता है. क्यों बन जाएगा, क्योंकि वहां पे आयन फॉर्म में अवेलेबल है.
ऐसे ही हम लोग अगर देखें कि प्योर वाटर है, प्योर वाटर इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं होता है। तो इफ यू हैव अ प्योर वाटर, वहां पे करंट नहीं मारेगा। लेकिन जैसे हम लोग बाहर जब रहते हैं तो बरसात का पानी अगर फैला है, तो अगर कोई तार कहीं ओपन उसमें टच कर रहा है, तो इट विल गिव यू शॉक इफ यू टच। व्हाई? बिकॉज इट इज नॉट प्योर वाटर। और जो प्योर वाटर नहीं है, उसकी वजह से वहां पे इम्प्योरिटीज है। इम्प्योरिटीज होने की वजह से क्या होगा कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स या उसको कुछ ऐसा चार्ज कैरियर्स मिल जाएगा जो उसको कैरी करेंगे। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम लोग बोल रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी को, जहां पे भी कुछ चार्ज कैरियर्स अवेलेबल है। अब हम लोग इलेक्ट्रॉन बोले या उसको बोले कि चार्ज कैरियर्स, जैसे जो NH प्लस Cl माइनस ऐसे बोल रहे हैं, आयन है, दीज आर चार्ज कैरियर्स। इफ मूव इलेक्ट्रिसिटी इज मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन कहें या कहेंगे मूवमेंट ऑफ चार्ज। चार्ज अगर मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन इज चार्ज पार्टिकल। थोड़ा सा हम लोग अपना टर्मिनोलॉजी ऐसे ला रहे हैं कि जो हम पढ़ना चाह रहे हैं उसको समझ सके। सो चार्ज का मूवमेंट अगर वहां पे पॉसिबल है, तो क्या हो गया? कंडक्टर हो गया। और फिर इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं। ऐसे कुछ कुछ कंडीशन समझ में है। अभी जैसे मैंने सबसे पहले बोला कि 2-3 तरह के मटेरियल हो गए, कुछ कंडक्टर है, कुछ नॉन कंडक्टर है, और किसी को सेमीकंडक्टर भी बोला जा रहा है। तो ये ऑब्वियस सा सवाल है हमसे, जो नहीं जानता है साइंस, जो नहीं पढ़ा है, वो ये बोलेगा कि ये है, ये क्यों नहीं? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? सो जो नहीं पढ़ा है वो पूछेगा, और जो पढ़ रहा है वो समझने का कोशिश करेगा। एंड देयर वर पीपल who tried to know it, they made theory for it, and they did experiment. Physicists do all this kind of stuff. फिजिक्स का मतलब यही है कि हम उसके बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन को हम पूछते हैं, एंड देन वी ट्राई टू आंसर इट। फिजिक्स में दो तरह से लोग काम करते हैं। कुछ लोग हैं जो थ्योरी बनाते हैं, कुछ लोग हैं जो एक्सपेरिमेंट करते हैं। जैसे अभी हम लोग इसी को समझना चाहें, जो हम कंडक्टिविटी का बात कर रहे हैं। So there could be one person who takes 20-30 type of different material, और उनको चेक किया कि इलेक्ट्रिकली कंडक्टिविटी इनकी कैसे है, कितना अच्छा इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर्स है। सो ही और सी गॉट ए डाटा कि देखो ये कंडक्टर है, ये नहीं कंडक्टर है, ये अच्छा कंडक्टर है, ये कम अच्छा कंडक्टर है। यू गॉट दिस मच डेटा। सो दिस इज एन एक्सपेरिमेंट। So experimentalist design experiments, and from that they drew conclusions. They go to the try to probe the question. जैसे दिमाग में ये है कि कोई कंडक्टर है, कोई नहीं है, तो उसके लिए हमको चेक करना पड़ेगा। देन जैसे किसी ने बोल दिया कि हाँ, नाउ आयरन इज कंडक्टर, कॉपर इज कंडक्टर, प्लास्टिक इज नॉट कंडक्टर, वुड इज नॉट कंडक्टर। नाउ नाउ अब दूसरा काम ये आता है कि हम इसको एक्सप्लेन करें। Why it is so? We don't accept anything as it is. साइंटिफिक एटीट्यूड यही है कि जब हमको कुछ मिलता है, then we try to understand it. Understand it means इसका बेसिक लॉजिक क्या है। So there are people who try to explain why iron is conducting, why copper is conducting, whereas wood or plastic is not conducting. तो जो लोग ये एक्सप्लेन करते हैं, दे आर बेसिकली इट इज कॉल्ड थ्योरेटिकल वर्क। तो फिजिक्स में दो तरह के लोग होते हैं, जो कुछ लोग थ्योरी करते हैं, कुछ लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं। और ऐसे ये कोई ब्रॉड डिफरेंस नहीं है। ऐसे भी लोग होते हैं जो थ्योरी भी करते हैं, एक्सपेरिमेंट भी करते हैं, और ऐसे भी लोग होंगे जो इनके बीच में बहुत कुछ होगा। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, बट ब्रॉडली वी कैन से दैट देयर आर टू अप्रोचेस इन फिजिक्स। One is experimentalist, other is theoretical. And very interesting thing तुम लोगों के साथ मैं बताना चाहूंगा कि अल्टीमेट रियलिटी या अल्टीमेट एविडेंस हम लोग एक्सपेरिमेंट को मानते हैं। तो जैसे किसी ने बहुत अच्छा थ्योरी दिया, तो उसका थ्योरी तब तक बहुत अच्छा मानने में सोचा जाएगा जब तक उसके एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं मिलेंगे। और एक बहुत सा इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल फैक्ट बताता हूं कि इफ यू नो अल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम सबने सुना होगा। एंड इफ जनरली इफ यू आस्क एनीबॉडी क्या किया था उन्होंने, अल्बर्ट आइंस्टाइन क्या मेजर काम किया था उन्होंने। So the people who don't know a lot of things about physics, a lot of things about Albert Einstein,
we'll be saying that E is equal to mc square. He invented E is equal to mc square. So this is very popular. Everybody knows that he said mass can be converted into energy and energy can be converted into mass. So the E is equal to mc square is very popular and everybody knows this is very different. And later we learned that atomic bomb, जो nuclear weapons है, they are also they are based on that fundamental uh, reality कि energy can be converted into mass, mass into can be converted into energy. So ये जो खोज था उसी से न्यूक्लियर वेपन और बहुत सारा चीजें हम लोग जान सकते हैं, सीख सकते हैं. So this is very fundamental. But if you know नोबेल प्राइज उनको किस लिए मिला था, तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाएगा. बेसिकली E इक्वल टू mc स्क्वायर जो फॉर्मूला आता है ये उन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिया है. थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आई डोंट नो कि तुम लोगों ने पहले कभी पढ़ा है कि नहीं, बट थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इज वेरी इंटरेस्टिंग. न्यूटन ने कुछ थ्योरी दिया, पहले न्यूटोनियन फिजिक्स बोलते हैं, फिर उसके बाद में आइंस्टीन ने कुछ ऐसी चीजें बोली जो न्यूटन की थ्योरी को मतलब बोल दिया कि न्यूटन की थ्योरी सही नहीं है, गलत है, या वो बहुत लिमिटेड है, या कई सारे ऐसे केस है जहां पे न्यूटन का थ्योरी काम ही नहीं करता. दैट इज कॉल्ड थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में E इक्वल टू mc स्क्वायर आया. तो E इक्वल टू mc स्क्वायर के लिए नोबेल प्राइज नहीं मिला उनको, एंड ही गॉट नोबेल प्राइज फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तुम लोगों ने पहले पढ़ा है 12th में. आई एम श्योर यू हैव लर्न इट समवेयर. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बेसिकली एक फिजिक्स में एक बड़ा डिबेट है. फिजिक्स इसलिए बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है क्योंकि यहाँ पे न्यूटन ने जो कहा था वो सही नहीं हुआ. आइंस्टीन ने बोला कि ये सही, न्यूटन का बात गलत है. लोगों ने कहा कि हाँ न्यूटन का बात गलत. दिस इज व्हाई साइंस इज डिफरेंट देन देयर आर. जैसे और भी होता है कि बड़े लोगों ने जो कह दिया वही सही है. रिलीजन में जैसे ये होता है कि किसी भगवान ने कुछ कहा है तो वो सही है. साइंस में ऐसे नहीं होता है. आज हम जो कह रहे हैं हो सकता है कि आगे की जनरेशन उसको गलत सिद्ध कर दे और हमको बोल दिया जाए कि तुम्हारा ये गलत था. एंड वी शुड बी हैप्पी. साइंस इज लाइक दैट. साइंस लव्स इवोल्यूशन. हम सच्चाई जानने में प्रयास करते हैं. वी जस्ट डोंट स्टिक कि हमने जो कहा वही सही होना चाहिए. तो दिस इज व्हाई साइंस एंड दिस रिलीजियस थिंग्स आर डिफरेंट. साइंस का एटीट्यूड यही है कि हम खुद को सुधारने में भरोसा करते, जो चीजें हमसे गलत हुई हैं हम उसको सही करेंगे. हम लोग बात कर रहे थे कि आइंस्टीन को थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए नोबेल प्राइज नहीं मिला और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए मिला. क्यों ऐसे मिला? दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है. जो फिजिक्स के स्टूडेंट्स है वो जानते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज आल्सो इंपॉर्टेंट एंड थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. सो व्हाई ही गॉट नोबेल प्राइज फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, नॉट फॉर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. जो मैं पहले बोल रहा था तुम लोगों को कि फिजिक्स में दो तरह के लोग होते हैं, जो लोग थ्योरी करते हैं, कुछ लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं. और मैंने बोला कि अल्टीमेट जब टेस्ट होता है तो एक्सपेरिमेंट के जो डेटा है वो सही होता है. जैसे मैं कुछ थ्योरी बनाऊं और थ्योरी से मैं एक्सप्लेन करूं कि नहीं आयरन भी कंडक्टर है और वुड भी कंडक्टर है. लेकिन जब एक आदमी कोई भी एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया जाएगा और वो आयरन को देखेगा, वुड को देखेगा और बोलेगा वुड कंडक्टर नहीं है, तो मेरी थ्योरी चाहे जितनी अच्छी हो वो थ्योरी का वैल्यू खत्म हो गया. ये थ्योरी गलत है ऐसा सिद्ध हो गया. तो अल्टीमेट टेस्ट हमेशा एक्सपेरिमेंट का होता है. तो जब आइंस्टीन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिया तो उस टाइम उसका कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं था. ऐसी बहुत सारी रेडिकल चीजें उन्होंने प्रपोज की. उन्होंने बोला कि तेज चलने से लेंथ कम हो जाता है. एक रॉड 1 मीटर का है, अगर वो वेलोसिटी ऑफ लाइट के करीब चलेगा तो बहुत छोटा दिखेगा. टाइम बढ़ जाता है. उन्होंने बोला एक टाइम डायलेशन का कंसेप्ट, एक ट्विन पैराडॉक्स आता है. मुझे पता नहीं तुम लोगों ने पढ़ा है कि नहीं, बट आई एम टेलिंग यू जस्ट कि कितना इंटरेस्टिंग हो सकता है. आइंस्टीन ने बोला कि दो लोग हैं, जैसे ट्विन पैराडॉक्स क्या है, वो एक दो लोग है, वो स्पेसशिप में एक भाई भाई है, या मान लो भाई बहन है, जो भी मानो, दो ऐसे लोग हैं जो ट्विन्स है. दे आर ऑफ सेम एज. सो वन स्टेज ऑन अर्थ,
अदर वन गोज इन ए स्पेसशिप। स्पेसशिप में जाके स्पेसशिप बहुत तेज वेलोसिटी से चलता है, एक हाइपोथेटिकल कंडीशन हम लोग बात कर रहे हैं, और वो करीब जब अर्थ में जो दूसरा था वो 5 साल रुका, और जो दूसरा था वो 5 साल घूम स्पेसशिप में रहा। स्पेसशिप पे जब लौट के आया, so the person who was in spaceship was less old as compared to the person who was sitting on earth। तो बोले क्या कि जो लोग हाई स्पीड से स्पेसशिप घूम रहा था, तो टाइम वहां पे धीरे धीरे चल रहा था। You have also learned concept of black hole, and also time is important, time is not linear। आइंस्टीन का जो प्रपोजल था वो इसी सेंस में रेडिकल था कि जो हम लोग 3D वर्ड का बात कर रहे हैं, टाइम इज अ डायमेंशन काइंड ऑफ थिंग, और टाइम को स्पेस के साथ कनेक्ट किया, एंड देन ही एक्सप्लेन अ लॉट ऑफ थिंग्स। आज के टाइम में अभी आइंस्टीन की थ्योरी गलत नहीं प्रूव हो पाई है, अभी तक आइंस्टीन की थ्योरी सही है। ओके, तो लेकिन आइंस्टीन को उसके लिए नोबेल प्राइज इसलिए नहीं मिला कि एट दैट टाइम देयर वाज नथिंग, कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट डिजाइन नहीं कर पा रहे थे जिससे कि हम आइंस्टीन की थ्योरी को सही सिद्ध कर दें। बट लेटर ऑन देयर वाज एक्सपेरिमेंट, पीपल फाउंड कि ये सही थ्योरी है। लेकिन जो थ्योरी ऑफ जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट था, वो तुरंत उसका एविडेंस थे, एक्सपेरिमेंटली उसको वेरीफाई किया जा सकता था। तो जो थ्योरी दी आइंस्टीन ने वो भी बड़ा रेडिकल थ्योरी थी, क्योंकि फिजिक्स में सबसे पहले न्यूटन ने बोला कि लाइट छोटे छोटे कणों से मिलके बनी है, कणिका सिद्धांत बोलते हैं उसको हिंदी में। फिर बाद में यंग और ऐसे कुछ लोगों ने ऐसे एक्सपेरिमेंट किए, जैसे यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये तुम लोगों ने 12th में पढ़ा होगा। उसमें बोल के आया कि लाइट तो वेव की तरह है। अब न्यूटन ने बोला कि लाइट पार्टिकल है, और यंग ने एक्सपेरिमेंट करके प्रूव कर दिया लाइट तो वेव है। नाउ देयर वाज नो चॉइस, पीपल एक्सेप्टेड इट। लेकिन कुछ टाइम के बाद आइंस्टीन ने फिर से फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट लाइट को वेव मान के एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा था। तुम लोग फिजिक्स लैब में कुछ एक्सपेरिमेंट्स करोगे तो ये सब चीजें उसमें भी आएंगी, बट दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग काइंड ऑफ थिंग, सो आई एम ट्राइंग टू डेवलप, लाइक तुम लोग उसको सुनोगे तो तुमको भी कुछ इंटरेस्ट होगा। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लाइट को वेव मान के एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, and Planck was there, he was also proposing some radical things, and then Einstein ने क्या किया, उसको एक्सप्लेन किया कि लाइट इज मेड ऑफ स्मॉल एनर्जी पैकेट्स, E is equal to h न्यू। मतलब छोटा छोटा पैकेट है, उसका एनर्जी h न्यू है, न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी, h इज प्लैंक्स कांस्टेंट। सो आई थिंक यू ऑल नो ऑल दिस, बिकॉज 12th में सब पढ़ाया जाता है। तो अब क्या हुआ, he explained it, एनर्जी पैकेट एक्सप्लेन करके he explained फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में कुछ ऑब्जर्वेशंस ऐसे आ रहे थे जो वेव थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं हो पा रहे थे, और उसके लिए उनको नोबेल प्राइज दिया गया। अब ये सब जो कहानी मैं बताया, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, ऑल दिस स्टोरी, आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू दैट देयर आर टू टाइप ऑफ working process in physics. One is experimental, other is theoretical, and experimental is always preferred। जब भी हम कोई थ्योरी या कुछ बात करते हैं तो एक्सपेरिमेंट के साथ वो एग्री करना चाहिए। अल्टीमेट रियलिटी एक्सपेरिमेंट्स है। तो ऐसे ही जब हम लोग मटेरियल का बात कर रहे हैं, डिफरेंट मटेरियल, कुछ सेमीकंडक्टर है, कुछ कंडक्टर है, कुछ इंसुलेटिंग है, तो पहले तो एक क्वेश्चन है ऐसा क्यों है, और दूसरी चीज ये कि ये हमको पता है, हम लोग एक बिजली के दो तार लेके बैठेंगे एंड वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि ये कंडक्टिंग है कि नहीं है, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट डिजाइन करना मुश्किल नहीं है। अब इसकी थ्योरी सोचना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, और थ्योरी हमारी ऐसी होनी चाहिए जो एक्सपेरिमेंट के साथ एग्री करे। जो हम एक्सपेरिमेंट में बोल रहे हैं, इट शुड बी एबल टू एक्सप्लेन इट, देन थ्योरी इज करेक्ट। अदरवाइज थ्योरी हमने कुछ भी दिया, वो थ्योरी का कुछ मतलब नहीं है अगर वो एक्सपेरिमेंट को वेरीफाई नहीं करता। तो सबसे पहले लोगों ने ये सोचना शुरू किया कि
क्या होता होगा कि कुछ मटेरियल कंडक्टर हैं, कुछ मटेरियल नॉन कंडक्टर है। तो जैसे हम लोगों ने सोचा कि फ्री इलेक्ट्रॉन का अवेलेबिलिटी एक बड़ा फैक्टर है, कि कोई मटेरियल है उसमें अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है, चार्ज कैरियर्स अवेलेबल हैं, तो वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होगा, अगर नहीं है तो वो इंसुलेटर होगा। ठीक है, सबसे पहला अटेम्प्ट हुआ, उसमें एक थ्योरी आता है फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, सबसे पहले। तो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी में क्या किया, एक क्लासिकल थ्योरी है इसकी, और एक जो है क्वांटम थ्योरी है। फिजिक्स में एक फेज आता है जहां पे क्लासिकल मतलब एक तरह से न्यूटन के टाइम का जो फिजिक्स है, जो न्यूटन के तरह से फिजिक्स डेवलप किया गया, और एक फिजिक्स है जो न्यूटन के फिजिक्स को गलत प्रूव कर दिया, and they said that there are a lot of things which have to think taken care, और न्यूटन का जो अंडरस्टैंडिंग है इज वेरी लिमिटेड, थोड़ा बहुत फेज में काम करता है बट सब जगह ये काम नहीं करता, तो उसके लिए क्वांटम मैकेनिक्स आया, क्वांटम फिजिक्स आया। तो तो जनरली बहुत सारे बार हम लोग क्लासिकल के टूल्स अलग है, क्वांटम के टूल्स अलग हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे जब हम लोग समझना शुरू करते हैं तो फिजिक्स में ऐसे एग्जांपल्स दिखते हैं। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी है, फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी मतलब जो हम लोग एक सवाल देख रहे थे कि कुछ कंडक्टर है, कुछ नॉन कंडक्टर है, तो कंडक्टर नॉन कंडक्टर क्यों है, उस कंडक्टर नॉन कंडक्टर के क्वेश्चन को एड्रेस करने के लिए कोई थ्योरी सबसे पहले आया। तो एक ड्रूड करके साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्लासिकल थ्योरी एक्सप्लेन किया, एक थ्योरी दिया, उसको बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, क्लासिकल क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऐसे कह सकते हैं। तो उन्होंने कुछ कुछ ऐसे एजम्पशन माने। थ्योरी का मतलब यही है कि तुमको कुछ एक्सप्लेन करना है। मैंने तुमको दो टुकड़े दिए, ये बोला लोहा है, देखो ये कंडक्टिंग है, और ये लकड़ी है, ये कंडक्टिंग नहीं है। अब तुम ये बताओ कि क्यों ऐसा है। तो देन यू हैव टू थिंक ऑफ अ थ्योरी। तो थ्योरी में तुम कुछ भी अजम्पशन करने के लिए फ्री हो, जब तक तुम्हारे पास कुछ सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट नहीं है या तुम कुछ डिजाइन करते हो। लेकिन जो उसकी थ्योरी के आंसर आए वो इसको एक्सप्लेन करे कि ऐसा ऐसा इसलिए है, देन योर थ्योरी इज करेक्ट। इफ यू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स बट थ्योरी एक्सप्लेन नहीं, लोहा तो इंसुलेटर होना चाहिए, तो मतलब तुम्हारा थ्योरी गलत हो गया। तो ऐसे थ्योरी में कुछ एजम्पशंस करने की फ्रीडम होती है, गिवन कि तुम्हारा थ्योरी एक्सपेरिमेंट को सही से एक्सप्लेन कर पाए। ओवरऑल टेस्ट थ्योरी का यही पे है। तो जो ड्रूड थे उन्होंने एक मॉडल बनाया फिर इलेक्ट्रॉन थ्योरी। उन्होंने बोला कुछ कुछ हम पहले से एज्यूम कर लेंगे, और एजम्पशन के बेसिस पे उन्होंने उसको एक्सप्लेन करने का कोशिश किया। फिर एक साइंटिस्ट हुए लॉरेन। तो लॉरेन ने ड्रूड के मॉडल में और कुछ करेक्शन किए, और एक क्लासिकल मॉडल बोला जाता है ड्रूड एंड लॉरेन मॉडल ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्योरी, जिसको हम लोग क्लासिकल इलेक्ट्रॉन थ्योरी कहते हैं। इसके बाद जब कुछ कुछ चीजें तो वो एक्सप्लेन कर पा रहा था, जो ये थ्योरी बनाए ये लोग फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, कुछ कुछ चीजें एक्सप्लेन कर पा रहा था। एक तो ये सोच ही नहीं सकता था कि सेमीकंडक्टर भी कुछ होता है, सेमीकंडक्टर वाला आइडिया एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स एक्सपेरिमेंटली जो एक्सप्लेन नहीं हो रही थी, मतलब ये थ्योरी काम चलाओ जैसे था। तो अगर तुम्हारा थ्योरी काम चलाओ है तो ठीक तो है, कुछ नहीं था उससे तो अच्छा है, लेकिन यू नीड टू हैव एन बेटर थ्योरी। तो व्हाट हैपेंड लेटर ऑन, सोमरफील्ड एक साइंटिस्ट हुए हैं, उन्होंने उसका क्वांटम थ्योरी दिया। मतलब जो कुछ ये लोग एजम्पशन माने थे, उन्होंने बोला कि ये सब एजम्पशन गलत है। इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा पार्टिकल है, और इलेक्ट्रॉन को की बात जब हम लोग कर रहे हैं तो उसको क्वांटम मैकेनिक्स नेचर है, उसका नेचर क्वांटम मैकेनिक्स की जोन में आता है, क्लासिकल उसको मान के चलेगा नहीं। तो उन्होंने उसको मॉडिफाई किया, एंड हाँ अच्छा ये हुआ कि ये थोड़ा और बेटर हो गया। अब हम लोग बेसिकली फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी पढ़ने वाले हैं, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी हमारे सिलेबस में है। तो अभी तक जो भी हमने बात किया, तो हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी पढ़ेंगे। जैसे इसमें देखो और आगे देख रहे हैं तो एनर्जी बैंड की बात आ रही है। तो अभी जो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी है वहां पे सेमीकंडक्टर की बात ही नहीं हो पा रही, क्योंकि वो कंडक्टर और इंसुलेटर
को पहले एक्सप्लेन करें तब तो सेमीकंडक्टर की बात करेंगे। एंड देन फिर उसके बाद बैंड थ्योरी आती है, बैंड थ्योरी में डिफरेंट मॉडल आते हैं। तो ये सब चीजें हम लोगों को पढ़ना है पहला यूनिट में हम लोग यही समझेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल कितने तरह के होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल ये इसका नाम है यूनिट। तो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी से शुरू करेंगे हम लोग, फिर हम लोग बैंड थ्योरी और ये सब चीजें सीखेंगे।